Hello, welcome to my channel. So in the last previous two videos, I have been analyzing the 2023 GS analysis and we have completed till 56 questions, okay? I'll show you. Yeah, so till 56 we have completed. Today we'll start from 57, okay? So till now, there are number of easy questions is 29 to 30, okay? 29 to 30 easy questions we have found it till now. So those who are new to my channel, please watch the part 1 and part 2. This is part 3. So we'll discuss today, and if you like my initiative, do like and subscribe. Okay, so let's begin. Souls are not only the property of animal and plant life, but also of rocks, running water, and many other natural objects not looked on as a living by other religious sects. So he's saying that souls are there not only for animal and plant life, but also for non-living things. Okay, so he's saying which of the following, okay, in which of the following is the belief that non-living things are also having a soul. Okay, so you should think that Buddhism, first of all, idol worship is not there. Okay, that means they don't consider idols as some form of god or something. Okay, Shaivism and Vaishnavism, we know they are particularly related with Shiva and Lord Vishnu, Lord Shiva and Lord Vishnu. So these also both couldn't be the answer. So the only one answer we are left with is Jainism. Jainism क्या करता है कि नॉन लिविंग बीइंग्स में भी आत्मा होता है. ठीक है. So this is the fundamental aspect of Jainism. So we got another one. So here, okay, let's think that only 29 are right. Okay, don't think 30 are right. We'll go with the least probability. So now 30. Okay, right. Next question. Who among the following rulers of Vijayanagara Empire constructed a large dam across Tungabhadra river? ठीक है, and a canal come several kilometers long. So this is actually very difficult one because NCERT में उन्होंने कहा था कि पर्टिकुलर डायनेस्टी का नाम दिया है, पर कौन सा राजा है ये उन्होंने नहीं बताया. I think it is Devaraya one, but I would consider that this is tough question because as a direct resource हमें कहीं नहीं मिल रहा. So far so good. 30 questions are easy. Okay. Who among the following rulers of medieval Gujarat surrendered due to Portuguese? ये इसका I have found the source. Okay. स्पेक्ट्रम से ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा. आंसर इज बहादुर शाह. So easy. 31. By which of the following acts was the Governor General of Bengal designated as Governor General of India? ये सबसे I would say the easiest question directly from Lakshmikant. So this would be Charter Act of 1833. So 30, 31, 32, 33 questions so far. ठीक है, let's go. In essence, what does due process of law mean? Okay, तो ये वाला हल्का सा यहाँ पे इन्होंने ट्विस्ट किया है. I would say this is moderate because due process of law मतलब law doesn't suppose there are two things. Okay, one is procedure established by law and due process of law. Procedure established में by law में क्या होता है, अगर आपने पूरा process properly किया है, so if a person they will not see the circumstances of the person, and if the law is properly applied, then the person is given whatever उसको सजा मिलना है वो दे देंगे. ठीक है, पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में वो लोग देखेंगे कि लॉ जस्टिफिएबल है कि नहीं. ओके, दे वुड ऑल्सो कंसिडर द सर्कमस्टेंस ऑफ द पर्सन. ठीक है, तो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं है और ये इक्वालिटी बिफोर लॉ ये भी नहीं है. तो ये दोनों में से आंसर होगा. ठीक है, that's why I said it is moderate because we don't know whether it is principles of natural justice or fair application of law. ठीक है, but mostly आंसर मेरे हिसाब से ये होगा. but let's see UPSC क्या देता है आंसर. so I would say moderate. so far so good. 33 questions right? 30, 31, 32, 33. हाँ, अभी तक 33 easy questions. okay, अब यहाँ देखिए. इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. देखिए प्रिजन्स के बारे में 2020 से स्टार्ट हुआ है. एवरी ईयर मोस्टली दे आर आस्किंग, तो आपको प्रिजन्स के बारे में पढ़ना होगा. आपको पता है प्रिजन्स इज ए स्टेट सब्जेक्ट. इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिजन्स. राइट. ओके, इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न्ड बाय प्रिजनर्स एक्ट 1894.
which explicitly kept the subject of prisons in the control of provincial governments. ठीक है, तो ऐसा बोल रहा है, but this seems to be a generic statement unless they have done something with the act. Okay, but we will still categorize this as moderate because ऐसा लग रहा है कि ठीक है दोनों एक दूसरे से बैठ रहे हैं, so I think this should be answer, not this, but still moderate में रखते हैं. So far 33 questions. ठीक है. Which of the following statements best reflect the chief purpose of constitution of a country? So ये भी question बहुत easy है. Okay, the answer is this: it defines the limits of powers of the government. ये बार बार पूछ रहा है, ये भी 2020 से, कि constitution what is constitution form of government? That which limits the government. ठीक है, पहले 2020 में आया, फिर शायद 21 और 22 में भी आया. If you check it, you will come to know. Okay, so here it is. This is my spectrum. I've taken this photo of my spectrum, and here you can see बहादुर शाह of गुजरात. इसका और हुमायूं का थोड़ा conflict होता है, तो he surrenders the area to the Portuguese person. Okay, so from there they have taken the source. और ये देखें prisoners का और parole के बारे में civil services पूछा गया है, देखें. Okay, so from there they have taken the theme. Okay, so far how many right questions are forgot here? Let's see. So here 30, 31, 32, 33 और ये moderate छोड़ो, 34 easy questions. Okay, अब ये वाला देखो. In India, which of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of fundamental rights? So I would consider this as moderate because you know that these two are wrong. हो सकता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट हो या 42nd अमेंडमेंट हो, बिकॉज 42nd अमेंडमेंट यू नो इट वाज इन द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी एंड देयर वर मेनी चेंजेस डन, बट आंसर वुड बी स्टिल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, बिकॉज फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में लैंड रिफॉर्म्स के अगेंस्ट पे ओके दे हैव ब्रॉट दिस अमेंडमेंट which was enacted to help people by distributing lands. Okay, but still this is still moderate. Okay, so far 34 questions, sorry, 34 questions so far, right? Okay, consider the following organization bodies in India. The National Commission, okay, organizations दिया, पूछ रहा है how many of the above are constitutional body. ये बहुत सिंपल है, ये एनसीडीसी तो है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एनएचआरसी नहीं है, नेशनल लॉ कमीशन नहीं है, नेशनल कंज्यूमर रेड्यूसल कमीशन ये भी नहीं है, तो ये तीनों नहीं है, ओनली वन इसका आंसर है. तो ये इजी क्वेश्चन है आपका, 35 इजी क्वेश्चंस. ठीक है. If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done by him in the performance of his duties office of president before the date of the decision becomes invalid. ये गलत है, ये डायरेक्टली फ्रॉम लक्ष्मीकांत है. Okay, election for the post of the President of India can be postponed on the ground that some legislative assemblies have been dissolved. ये भी गलत है, ये डायरेक्ट आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, ये डायरेक्ट सेम सेंटेंसेस with small differences. They actually it cannot be postponed. ठीक है, cannot होना चाहिए यहाँ पे. और ये decision becomes नहीं, does not becomes invalid होगा. ठीक है. When a bill is presented to the President of India, Constitution prescribes time limit. देखिए ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसी वजह से जो है कभी कभी डिले हो जाता है. ओके, तो इसका आंसर है नन. ये भी इजी क्वेश्चन है, तो 36 इजी क्वेश्चंस. ओके, अब ये वाला थोड़ा सा इसमें इश्यू है. ठीक है, देखते हैं. फाइनेंस बिल और मनी बिल. देखिए मनी बिल, when the Lok Sabha transmits finance bill to Rajya Sabha, it can amend or reject the bill. देखिए फाइनेंस बिल है तो ये हो सकता है, मनी बिल होगा तो ये नहीं होगा. ओके, दैट्स व्हाट आई परसीव्ड. आंसर इसका थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, आई डोंट नो, बट फाइनेंस बिल में जो है राज्यसभा का स्टेक है, मनी बिल में नहीं है. ठीक है. When the Lok Sabha transferred money bill to Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make recommendation. Yes, money bill है तो राज्यसभा रिकमेंडेशन ही कर सकता है. इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल. यहाँ तक राइट है, बट ए जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर अ फाइनेंशियल बिल. ये भी सही है.
बट यहाँ पे नेसेसरी वर्ड पे थोड़ा एम्फोसिस किया गया है, तो आई डोंट नो हाउ यूपीएससी विल परसीव दिस, बट अकॉर्डिंग टू मी, या ऑल द 3. ओके, so far 34. okay, 34 राइट. ठीक है, देखते हैं. ये भी इजी क्वेश्चन ही है, चलो इसको मॉडरेट कर देते हैं. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक जगह पे इन्होंने खेला है, बट विल सी whether that is what the key they will give. Okay, once the central government notifies an area as a community reserve, वहाँ पे क्या क्या होता है, तो इसमें ये थोड़ा सा डाउट है मुझे. ठीक है, तो दैट्स वाई वी कुडंट कम टू द राइट आंसर. चलो मॉडरेट लगा दो. ठीक है, एक बार इजी क्वेश्चंस काउंट कर लेते हैं. तो यहाँ तक 30, 31, 32, 33, 34. ओके, 35, 36, 36. ठीक है. ओके, 69 क्वेश्चन देखते हैं. विथ रेफरेंस टू शेड्यूल एरियाज, सॉरी, with reference to schedule areas in India, consider the following statements. Within a state, the notification of an area as a scheduled area takes place through an order of the president. Okay. The largest administrative unit forming the scheduled area is the district, and the lowest is a cluster of villages in the block. ये right है. ठीक है. The chief minister of the concerned states are required to submit annual reports to the Union Home Minister on the administration of scheduled areas of the state. ये मुझे थोड़ा डाउट है, ये चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा, ये शायद गवर्नर हो सकता है. ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर इन दिस क्वेश्चन, तो इसको टफ कर देते हैं. ठीक है, दिस इज टफ. तो बार कितना हुआ भूल जा रहा मैं बार बार. ठीक है, लास्ट में काउंट करते हैं. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स दैट रिजर्वेशन पॉलिसीज अंडर Article 16(4) and the Constitution of India would be limited by Article 335 for the maintenance of efficiency of the administration. I don't know. Let's see. Article 335 of the Constitution of India defines the term efficiency. जहाँ पे भी defines the term आता है Constitution में, वहाँ पे you have to be little bit careful because Constitution is a broad agreement. Okay. और ब्रॉड एग्रीमेंट में सब कुछ डिफाइन नहीं होता है, तभी हम लोग लॉस मेक करते हैं. ठीक है, पार्लियामेंट लॉ पास करता है, एक्ट पास करता है, डेफिनेशन देता है. तो ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग, so we don't need to know about this. Once this second one is wrong, get to answer C. तो अभी देख लो कि ये वाला जो है ये सही है. ठीक है, 335. अब देखो बहुत लोग बोलते हैं कि आर्टिकल्स नहीं पूछता है, नहीं पूछता है. देखो पूछ लिया, आगे से पढ़ना. ठीक है, तो दिस इज इजी. ओके, नेक्स्ट, ये इंटरेस्ट इनकम फॉर डिपॉजिट इनविट्स ये पढ़ा है पर मैं भूल गया, सो टफ. ठीक है, नेक्स्ट 72 क्वेश्चन. In the post-pandemic recent past, many central banks worldwide had carried out interest rate hikes. This is correct. क्यों? क्योंकि पोस्ट पैंडमिक में ऐसा हुआ था कि जो मनी था वो लोगों के पास में, मतलब अगर ज़्यादा हो जा रहा मनी, और तो उसका परचेजिंग पावर जो है वो कम हो जाएगा, बिकॉज ऑल एज यू नो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता रहेगा. सो व्हाट दे डिड, सेंट्रल बैंक्स क्या किया, उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया. ठीक है, तो ये बोलता है सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरएक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस. मैंने बोला था ना इन्फ्लेशन हो गया, प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो उसको काउंटर रिएक्ट करने के लिए इन्होंने ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी लगाई. ये बिल्कुल सही है. तो ये दोनों सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. ठीक है, और इसका आंसर होगा ये. दिस इज ऑल्सो इजी. ओके, सो फार सो गुड. देखेंगे लास्ट में काउंट करेंगे. ओके, 73. ये शायद थोड़ा इसका जूम कर लेता हूँ. कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. बिल्कुल सही. कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट. नहीं पता. तो अगर नहीं पता तो वी कैन वी गेट टू द करेक्ट आंसर? नो, बिकॉज ये अगर सही हो जाएगा तो ये भी आंसर हो सकता है ना. बट कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट, ये हर बार तो नहीं होगा, बट क्यों रिस्क लेना. इसको मॉडरेट कर दो क्योंकि आधा आंसर तो पता ही है. ठीक है, ओके. 74. Which of the following activities of the Reserve Bank of India is considered a part of sterilization? ठीक है, sterilization
अब आप देख सकते हो स्टेरिलाइजेशन का मतलब ही क्या है, आपको पता है, किसी चीज को कंट्रोल करना, ठीक है। तो कैसे वो कंट्रोल करेगा, ओपन ओपन मार्केट ऑपरेशन से, ठीक है। So if you would have studied this is very easy, but I would still categorize as moderate, ठीक है। Okay. Consider the following markets: government bond market, call money market, treasury bill market, stock market. Which of the following are included in capital markets? नहीं पता भाई, टफ। चलो नेक्स्ट। Which of the following best describes the concept of small farmer large field? ठीक है, यहाँ पे आप इसको ब्रेक करो, स्मॉल फार्मर, ठीक है, और लार्ज फील्ड। मतलब स्मॉल फार्मर्स को वो लोग, छोटे छोटे फार्मर्स को ये लोग एक बड़ा फील्ड दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा ही कुछ है इसका। ओके, तो लेट्स गो टू द ऑप्शंस, लेट्स गो टू द ऑप्शंस एंड सी ये लोग क्या बताते हैं, ठीक है। Resettlement of a large number of people uprooted from their countries due to war by giving them large cultivated land which they cultivated collectively and share the product। ये resettlement of large number of people uprooted from their countries, ठीक है। ऐसे कुछ कंट्री में अगर वॉर टॉर्न एरिया है तो वहाँ के लोगों को रीसेटलमेंट दे रहे हैं, ये ठीक लगता है बट नॉट एप्ट to this। Okay, many marginal farmers in area organize themselves into groups and synchronize and harmonize selected agriculture। ये देखिए, synchronize करना, harmonize करना, ठीक है, this is what is getting together of the marginal farmers है, ठीक है। इनका upliftment के बारे में बात कर रहा है, तो मोस्टली ये राइट होगा, ठीक है। many marginal farmers in an area together मेक ए कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉर्पोरेट बॉडी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता है, ऐसे ही कुछ फार्म लॉस में आया था बट उसके लिए बहुत विद्रोह हुआ, अल्टीमेटली गवर्नमेंट टुक बैक द बिल, सो दिस इज रॉन्ग। कंपनी एक्सटेंड्स लोन्स, technical knowledge and material inputs to a large number of small farmers in an area so that they can produce the agricultural commodity required by the company for its manufacturing process and commercial production। this seems to be right, but यहाँ पे आपको ये देखना है कि लार्ज फील्ड तो नहीं है, लार्ज फील्ड के बारे में यहाँ पे नहीं बात किया, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर। अब ये तो नहीं पता। ओके, नाइजर इज कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप। ये मैंने ये सोचा कि ये बट थोड़ा कॉमेडी रहेगा, आपको लगेगा आपको कि नाइजर जो है वो नाइजीरिया से थोड़ा बहुत मेल खा रहा है नाम, तो अफ्रीकन कंट्रीज होगा तो ठंडा वाला क्रॉप, रबी क्रॉप तो नहीं होगा, तो खरीफ क्रॉप ही होगा, तो इससे मैंने ऐसा टिक किया। सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। हो सकता है यार, सम हमेशा रहेगा ना, तो उसकी पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं है, ठीक है। तो दिस वुड बी मॉडरेट बिकॉज आपको दो तो पता है, एक का डाउट है, तो यू कैन आइदर गो विद 2 और 3, ठीक है, आपको चांस लेना है यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट, 78, consider the investments in the following: brand recognition, inventory, intellectual property and mailing list of clients। ये intangible वाला बोल रहा है। intangible means the one which you cannot touch, आप उसको हाथ से टच नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रांड रिकॉग्निशन को नहीं कर सकते, इन्वेंट्री को तो कर सकते हैं, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट्स इसको तो कर ही सकते हैं। अब इन्वेंट्री को ये लोग अगर मैन्युअल इन्वेंट्री लेंगे तो कर सकते हैं बिल्कुल, एक लिस्ट अगर इन्वेंट्री का मिल जाएगा तो क्या, उसको तो छू सकते हैं ना। सो दिस इज मॉडरेट। ओके, नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल टैक्स। देखिए 15th फाइनेंस कमीशन बहुत न्यूज में था और वो लोग बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन में, हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन में क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, ठीक है, अदर देन पॉपुलेशन, एरिया एंड इनकम डिस्टेंस, ठीक है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी भी है, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स ऐसा कुछ नहीं है, स्टेबल गवर्नमेंट ऐसा भी कुछ नहीं है, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स यस, ठीक है। तो आंसर इज ओनली 3। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स: अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह 4 दिया है। हाउ मेनी ऑफ द UNOPS सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, ठीक है। अब ये तो नहीं पता है बट वन थिंग आई कैन नो दैट UNOPS इज नाउ इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगले बार से इसको देख के जाइएगा,
ऑलमोस्ट शायद 2 क्वेश्चंस पूछा है, राइट। 81, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। देखिए ये बिल्कुल सही चीज है। आजकल कोल का शॉर्टेज हुआ था और आंध्र प्रदेश में, इफ यू हैव सीन द न्यूज एंड इफ यू आर फॉलोइंग द न्यूज़पेपर, आंध्र प्रदेश में कोल का शॉर्टेज हुआ था, ठीक है, और स्लोली स्लोली सदर्न इंडिया में भी कोल का शॉर्टेज हुआ था। तो हम लोग कोल को जो है वो भारी मात्रा से इंपोर्ट करते हैं। सो दिस इज राइट। द मोमेंट दिस इज राइट, दिस गोज रॉन्ग। यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60%, ठीक है, यहाँ पे 60% बोला है, इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए 60% एनरिच करना होगा? नो। अब ये मुझे कैसे पता? आई हैव बीन रीडिंग न्यूज दैट USA was concerned that Iran is enriching its nuclear power, okay, by some 3.5%, something like that. तो उसी में US मतलब बहुत बौखला गया था कि ईरान ऐसे कैसे कर सकते हैं। दिस इज 3.5, ओके। तो 60% में इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज रॉन्ग, ओके। सो आंसर इज सी। सो दिस वुड बी कैटेगराइज्ड एज अगेन इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब आप समझो कि हर कुछ चीज जो है आप जो पढ़े हो अपने रिसोर्स बुक से वो डायरेक्टली नहीं आने वाला। यू हैव टू यूटिलाइज योर माइंड, यू हैव टू यूज योर पेरिफेरल नॉलेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। वही मैं आपको अभी बता रहा हूँ इन वीडियोस के थ्रू। अब ये देखिए, मार्supials आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। तो मार्supials क्या होता है? ये मार्supials आर दोज एनिमल्स, दे कीप देयर बेबीज इन ए पाउच, ओके। मतलब ऐसे जीव जंतु है जो बच्चा पैदा करने के बाद वो अपने एक स्टमक में एक बैग टाइप का रहता है, उसमें उनको लेके घूमते हैं। द एग्जाम्पल इज कांगरू, ओके, कांगरू, कंगारू, आप जो बोलते हो, ठीक है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? कंगारू इंडिया में है नहीं, तो दे आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, दिस इज करेक्ट। मार्supials कैन ओनली थ्राइव इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विथ नो प्रेडेटर, ये गलत है। देखिए, क्या ऑस्ट्रेलिया में आपका कोई प्रेडेटर नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है, होगा, लेकिन वहां पे कंगारू है, बिल्कुल है। तो आंसर वुड बी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। दिस इज अगेन इजी, ठीक है, ओके। इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, अगर इसको देख के आपको पता चलना है कि इन्वेजिव स्पीसीज का जो लिस्ट निकालता है, डेटाबेस जो होता है, वो कौन देता है? तो आंसर इज IUCN। दिस इज इजी, ठीक है। अगर IUCN वेबसाइट आप देखोगे तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। और रिसेंटली ये क्यों था? क्योंकि न्यूज में था इन्वेजिव स्पीसीज, ओके। अब ये मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, ये बहुत डिफिकल्ट है बताना कि कौन सा नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल मतलब जो रात के टाइम पे एक्टिव होता है, ये देखिए इतने बताया भी है। अब वो हमें नहीं पता है। मॉर्फोलॉजी में पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में पढ़ना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, सो आई वुड कैटेगराइज दिस एज टफ। अब ये भी एक मॉर्फोलॉजी टाइप का सवाल है। वैगल डांस मतलब एक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म वैगल डांस फॉर अदर्स ऑफ देयर किन टू इंडिकेट, यहाँ पे किन मतलब देयर ओन स्पीशीज, ठीक है, टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ फूड। मतलब ये बता रहा है कि ऐसा कौन सा इन चारों में से है जो एक डांस परफॉर्म करके उनके ही लोगों को बताता है कि यहाँ पे फूड है, ठीक है। तो आंसर इसका हनी बीस है, बट आई वुड स्टिल से दिस इज वेरी टफ। मुझे भी नहीं पता था हनी बीस, और मैंने उधर किया भी नहीं। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मेट देखिए। सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, एक भी मशरूम ऐसा मिल गया जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो तो ये राइट होगा। तो एंड ऑब्वियसली आपको पता है कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं। सम मशरूम्स हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, सम मशरूम्स, ओके, हो सकता है। सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, हो सकता है। देखिए जहां पे भी सम है वहां पे प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ऑल द 4। नेक्स्ट, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन स्क्वायरल्स। दे बिल्ड नेट्स बाय मेकिंग बरोस इन द ग्राउंड। बिल्कुल, अगर आपके गार्डन में स्क्वायरल्स हैं जैसे कि मेरे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो छोटे छोटे बर्रो बना के उसके अंदर रहते हैं, ओके। नेक्स्ट, दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड। बिल्कुल, इनफैक्ट ये क्या करते हैं, आपका जो फूड मटेरियल्स हैं वो मतलब छोटे छोटे सीड्स हैं, वो ये लोग ग्राउंड के अंदर ना दफना के फिर भूल जाते हैं। तो दे से दैट बिकॉज ऑफ दिस, मतलब जो बोलने की शक्ति है इनको,
मतलब भूल जाते हैं, तो उसी के कारण वहाँ पे एक सिर्फ फिर एक छोटा सा प्लांट जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। सो इनडायरेक्टली स्क्वेरल्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू आवर ग्रीनरी, यू कैन से दे आर ओमनीवोरस। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, मैंने सोचा कि वो हर्बीवोरस है, बट नो, दे आर ओमनीवोरस, दे ईट इंसेक्ट्स, ठीक है। तो दिस आई वुड से मॉडरेट, बिकॉज दो तो आपको पता है, ये वाला डाउट है, तो यू कैन कम टू ए कंक्लूजन, ठीक है, ओनली 2 या ओनली 3 में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विद टेम्परेचर अबव बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सम, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो, अगेन पॉसिबिलिटी, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ऑल 3 क्वेश्चंस, तो ये इजी है। ओके, which one of the following makes a tool with a stick to scrape insects from hole in a tree or log of wood? So बता रहा है कि कौन सा इन चारों में से है जो एक स्टिक बनाता है, मतलब एक लठ टाइप का चीज बनाता है इंसेक्ट्स को निकालने के लिए एक ट्री के होल के अंदर से, ठीक है, या फिर वुड के अंदर से। तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ स्टिक बनाता है तो उसका माइंड जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, ये मेरा सोचना था। तो कैट तो नहीं भाई, कैट तो कभी देखा है क्या कि कैट इज मेकिंग एनी स्टिक और समथिंग, नो। ओरांगुटान मे बी, ऑटर ये क्या होता है मुझे पता ही नहीं, सो मैंने इसे हटा दिया। स्लॉथ बेयर, भाई नहीं, बेयर नहीं कर सकता, आंसर ओरांगुटान है। ओरांगुटान एक टाइप की मंकी है, तो मंकी होगा तो उसके पास मतलब वो थोड़ा सा माइंड रहेगा कि हाँ वो बना सकता है, तो दिस इज इजी। ये देखिए, एरोसॉल, फोम एजेंट्स, फ्लू रिटार्डेंट्स और लुब्रिकेंट्स इन मेकिंग ऑफ हाउ मेनी ऑफ द अबव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज्ड। थोड़ा मुश्किल है, सो आई वुड से टफ, ठीक है। ओके, मैंने सोचा कि 4 पार्ट्स में बनाऊं, बट ठीक है, विल फिनिश इट ऑफ। हाउ मेनी 9 क्वेश्चंस आर देयर, ओके, विल डू इट। झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से है, यस। झेलम रिवर डज पास थ्रू वुलर लेक। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स इनटू कोलेरी लेक, नो। अगर आप थोड़ा सा भी कृष्णा और गोदावरी को देखोगे तो डायरेक्टली कोलेरी में फीड नहीं करता। मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक, ये राइट है एक्चुअली, ये न्यूज में था बिकॉज कन्वर लेक वाज ड्राइंग, ओके। और जो भी ड्राइंग वाला लेक है वो हमेशा यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, आपको देखना पड़ेगा। सो दिस 2, सो आई वुड से ओके, इजी, कुछ लोगों के लिए इजी, कुछ लोगों के लिए मॉडरेट है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट में। कामराजर पोर्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया, रजिस्टर्ड एज कंपनी, ये नहीं पता, ठीक है। मुंद्रा पोर्ट, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट ऑफ इंडिया, अदानी का बहुत न्यूज में था, आई थिंक, राइट। विशाखापट्टनम पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, नो। विशाखापट्टनम पोर्ट इज डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट, ओके। सो हियर यू कैन से मीडियम, बिकॉज एक तो आपको पता है एक नहीं है, तो हो सकता है 2 या हो सकता है 1 ही हो, ठीक है, राइट। ये जो है ना, ये एनसीईआरटी में है, बट आई वुड से कि इतना याद करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ओके। तो डिसीडियस ट्रीज कौन कौन से हैं, तो इसको 4-5 बार अगर रट नहीं लेते, नहीं तो ये बहुत डिफिकल्ट रहेगा, सो आई वुड से टफ, ठीक है। ओके, 94, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना, ये एक्चुअली इकोनॉमिक्स में इसका जिक्र है आपका, इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट में लास्ट जो चैप्टर है उसमें, इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना, ओके, ऐसा है। बट एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन चाइना, नहीं, एवरेज प्रोडक्टिविटी जो है चाइना का ज़्यादा है, ठीक है। और ये दोनों भी अगर एनसीईआरटी में भी हो तब भी ये बहुत डिफिकल्ट है, इतना मतलब रिमेंबर करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो इसको टफ मान लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। आई वुड से दिस क्वेश्चन इज बेनिफिशियल फॉर हिंदी पीपल, वाई, यू नो, हिंदी में क्या है, यहाँ पे मार्शलैंड के बजाय कच्छ भूमि करके कुछ दिया है, डायरेक्टली उसमें पता चल जाता है कि दिस इज रन ऑफ कच्छ। फॉर दोज पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, आई एम सेइंग दैट इन हिंदी
instead of marshland they have given the wording as Kutch Bhumi. So the Kutch Bhumi here and the Kutch Bhumi in this, they are matching. Okay, so this is the answer. So for Hindi people it is easy, for others it is tough. ठीक है, हिंदी के लिए easy है. Right, next. Ilmenite, rutile abundantly available in the coastal track. आपको ओर्स का पता होना चाहिए. रूटाइल और इलेमनाइट जो है वो टाइटेनियम का है, क्योंकि एल्यूमिनियम का तो आपको पता है बॉक्साइट होगा. ओके, कॉपर का दूसरा ही कुछ और है, आयरन का आपको पता है मैग्नेटाइट है वगैरह वगैरह. तो ये भी नहीं, एलिमिनेशन भी करते हो तो इसीलिए आ जाता है. इजी क्वेश्चन. About 3/4 of the world's cobalt metal required for the manufacturing of batteries for electric motor vehicles is produced by. देखिए इसका आंसर मुझे नहीं पता, बट मैं आंसर बताऊंगा इसको कैसे निकाला. आई डोंट नो आंसर फॉर दिस, बट नाउ आई टेल यू हाउ आई अराइव्ड टू द राइट आंसर. Now this one I don't know. I've seen the options: Argentina, Botswana, Democratic Republic of Congo, and Kazakhstan. Well, I went to the next question. I've seen which of the following is a part of Congo Basin. Okay, so they have asked back to back two questions. Okay, where the option and the question are same. So you have to find these kind of keywords in your exam paper. पहले भी अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर देखोगे तो 100 गोरा कॉपर इंस्क्रिप्शन के बारे में 2 जगह पूछा गया है, और 2 जगह में एक चीज के बारे में पूछा जा रहा है. सो दैट मीन्स द आंसर इज वन ऑफ देम. ओके, सो हियर आई हैव पुट इट एज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. ओके, and here Congo Basin, the nearest one is Cameroon, so this is also right. Okay, so I would say this is also easy. Okay, and this is also easy. ठीक है, और अगर इसका आप ऑप्शंस भी देखोगे ना तो अर्जेंटीना नहीं है, बोट्सवाना भी नहीं है. बोट्सवाना हो सकता है, चलो ठीक है, इसमें थोड़ा मान लेते कि बोट्सवाना हो सकता है, पर आपको इतना पता है कजाकिस्तान नहीं है और अर्जेंटीना नहीं है. तो यू कैन कम टू द आंसर बाय बोट्सवाना और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. बट ये भी है कि बोट्सवाना कभी न्यूज़ में मैंने तो नहीं पढ़ा कि उधर कुछ मिला है ऐसा कुछ, बट स्टिल इजी एंड मॉडरेट में डाल देते. ठीक है, ओके. देखिए, अमरकंटक हिल्स आर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री. नहीं, ये तो डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा. ये इसको थोड़ा रखो पहले. शेषाचलम हिल्स कंस्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स. नहीं, दिस इज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स. अब ये देखो, बिलीगिरी रंगन हिल्स कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज. अब ये आपको लग रहा है इसका प्रोनाउंसिएशन से ही दैट दिस इज फ्रॉम साउथ इंडिया. ओके, सतपुरा रेंज इज समवेयर इन मिडिल. ओके, so this would also be wrong. So answer would be none. This is also easy question. Okay, next 100. With reference to projects on connectivity, if you see all these options, east west corridor, golden quadrilateral, don't know, pata nahi, I don't know this. So these three seems to be, I cannot come to the answer, so I would say that this is tough. Okay, so I think we came to the end. The questions we have completed. Let us see how many easy questions are there. Okay, so that we will just see that how much we can score. So here 29 to 30. So let's take 29. Okay. Let me zoom out. Yeah. So 29. Here 30. Next 31, 32, 33. Okay. So far 33. Down. Okay, 34, 35, okay, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, okay, 44, 45. Shall we consider this? No. Okay, 45 so far. Here 46, 47, okay, 48, 49. Okay, we are getting around 49 easy questions. Sorry, we are getting around easy questions. Okay, we are getting easy questions around 49. Okay,
and moderate questions you will be getting around, say, roughly I would say least to least 10. Okay, or we can just say, yeah, 10 definitely. So around you will be getting 59. Okay, easy to moderate questions. Okay, 59. Say for example, you are solving around 55 questions. Okay, so that would give you around 110 marks. Okay, around 110 marks. But still, you will say that no, 55 is more. Okay, let me take it out. Okay, I'm taking it. I'm not considering that you are scoring 55. Let us say that out of this easy also, you are scoring around, uh, yeah, 45. 45 you are scoring. Okay, still it is around into 2. Okay, you are getting around 90 marks. Okay, so I am definitely sure that cutoff will be less than 85 marks because of the level of the paper. Okay, it is not directly based on your knowledge, it is based on your application of knowledge. So we have to be preparing to this level. ठीक है, इस हद का प्रिपरेशन अगर होगा तब maybe we can clear next time. Okay, CSAT was very tough. I know it was unfortunate, and what could I say more on CSAT? Okay, but maybe in future I'll bring some good videos on GS also. And since I have cleared SSC, I will be teaching a little bit CSAT for those people who are very weak. Okay, so I think the cutoff should be less than 85, but we will see. I may be right or may be wrong. Let's see. Okay, so if you like my initiative, do press the like button and subscribe. Okay, thank you so much.